Good morning, students. Today we will be studying English grammar. So, take out your English grammar book. We will be doing chapter number 1 and 2 from your English grammar workbook. I have earlier posted the video of these two chapters, but in that video the audio was not clear, so I have decided to make the video again. I have deleted the earlier video. Okay, beta? So just open your book. चैप्टर नंबर 1 इज रिवीजन ऑफ द अल्फाबेट। तो इसमें क्या है, बहुत ही आसान है हर चीज। कंप्लीट द फॉलोइंग कैपिटल अल्फाबेट्स। यू हैव टू राइट डाउन द मिसिंग अल्फाबेट। ओके, दिस इज कैपिटल ए, देन देयर इज अ ब्लैंक, देन सी। सो you will write capital B, then C, then capital D, capital E, F, like that. You have to complete this question. Okay, then what is the second question? Second question is complete the following small alphabets. You have to, what you have to do is you have to write small alphabets. Small a is given, then you will write small b, then C, then small d, small e, like that. You have to complete this question also. Okay, then what is exercise C? Say the names of the picture aloud. Circle the letter in the row that is the vowel of the picture. इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पिक्चर आपको बनी हुई है उस पिक्चर को आपको उसका जोर से उसका नाम लेना। जैसे यहाँ पे डॉग की पिक्चर है तो आप बोलोगे डॉग, तो इसमें कौन सी वॉवल साउंड आ रही है, विच वॉवल साउंड इज कमिंग, डॉग, ओ। सो यू विल सर्किल द लेटर हियर टू लेटर्स आर गिविंग ओ एंड आई। So you will circle the letter O because I is not coming in the word dog. There is no sound of I. Okay, the sound is of O. So you will, in dog you will circle the letter O. Similarly, in this is the picture of a kite. Kite. What is the spelling of kite? K-I-T-E. Kite. The vowel sound is that of I. Okay, kite. Here two alphabets are given. Two letters are given. T and I. T is not a vowel, so you will circle the I letter. Moving on to the next page. Here the picture is that of a frog. Okay, so you will this is a picture of a frog, so we'll read the word frog aloud. Frog, the vowel sound is of O and not of U, so you will circle the letter O. Then the picture is that of a crab. What is the vowel sound? A and not I, so you will circle the letter A. Finally, this is the picture of a hat. Vowel sound is of that of A, H-A-T, hat, hat. T is not a vowel, it is a consonant, so you will circle the letter A. Okay, then we come to the D exercise. What is the D exercise? Complete the words with suitable consonants. You have to complete the word. Some letters are missing in the word, so you have to complete them with consonants. Okay, what are consonants? A, E, I, O, U are vowels. Rest of them are consonants. B, C, D, G, H. Okay, beta. So the first picture is that of a lion. Then L, I, O, N. So you will write in the first blank L and in the last blank N. So it is lion. I and O are vowels. You have to write the consonants. L and N both are consonants. Okay, beta. Then next picture is that of a apple. So you will write A. A is given last. E is given, then A double P L. A is a vowel. Last word E is also a vowel. You have to fill it with consonants. You will write P P L. P and L both are consonants. Okay, apple. Then this is a picture of a fish. The vowel I is given. You will write F, which is consonant. Then I is given. Then S and H. S, F, S, H. All three of them are consonants because you have to fill the letter. You have to fill the letter with consonants. Fill the blank with consonants.
Then comes the E exercise. What is the E exercise? Complete the words with suitable vowels. आपको ये words complete करना है किससे? Vowels से. जैसे इसमें आप consonant से complete कर रहे थे, इसमें आपको vowel से complete करना है. First क्या है? First picture is that of a mango, our national fruit of our country. Okay? So M is given. Then what is the spelling of mango? MANGO. Then you will write the vowel A, then N and G are given, then lastly you will write the letter O. A and O are vowels. Okay. Then next picture is that of a pencil. Then P is given, then you will write E, then N is given, then C is given, then you will write the letter A. Both E and I are vowels. You have to fill the blanks with vowels. Then last picture is that of a girl. G, R, L are given. You have to write after G the letter I will come. I is a vowel. So this completes your this exercise also. Now we will come to the F exercise. What is the F exercise? Write the vowels and consonants from the alphabets given below. Okay, some letters are given. Okay, you have to write the vowels in the first row and the consonants in the second row from this box. Okay, beta. So you know vowels are A, E, I, O, U. Just find out how many vowels are given here. A is given, then I is also given. A, E, then A is given, E is given, I is also given, then O is given and U is given. All the vowels are given. So you will write in front of vowels A, E, I, O, U. And then in front of consonants rest B, C, D, then F, then G, then H. You will write down it in the consonants column. Okay, beta. Then we come to the G exercise. What is the G exercise? Fill the vowels in blank boxes and write the words in the given blanks. You have to fill the box with a vowels. Actually, two words are, when you will fill the word with a vowel, with this box with a vowel, then two words will be formed. One will be vertical like this and the other word will be a horizontal word. Okay. Then you have to write one word here and the next word here. So you can write here which vowel you can put. There are 5 vowels A, E, I, O, U. So you can put here you can put here PO. So it will be a POT pot, MOP mop. Pot आपका हो जाएगा एक बर्तन और pot ये mop मतलब पोछा. तो POT pot, in the first row you will write pot and in the second row you will write MOP mop. Then this one you will write E, the vowel E, JET jet and PET pet. So you will write in the first row JET jet, then PET pet. You have to write that vowel only, that two words are formed. Two words mean that word must have some meaning. Okay, beta? You cannot form a meaningless word. Okay? जैसे इस वाले इसमें हम JET कर रहे हैं तो जेट हो गया और पेट हो गया. हम इसके जगह यू भी वॉवल, लेकिन JUT जट और PUT पुट तो होता है, लेकिन JUT जट वो कोई भी वर्ड नहीं होता, तो इसलिए हम यू नहीं पुट करेंगे. हम इसमें क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ई वॉवल ही प्लेस करेंगे. तो JET जेट PET पेट. फिर नेक्स्ट पे आ गए हम लोग. ये क्या है, यहाँ पे B है, यहाँ T है और यहाँ पे C है, यहाँ पे T है. तो इसमें क्या आ जाएगा, A हम यहाँ पुट कर देंगे, BAT बैट, CAT कैट. दो वर्ड्स फॉर्म हो गए, BAT बैट, CAT कैट. और यहाँ पे हम लोग U भी पुट कर सकते हैं, तो BUT बट हो जाएगा और CUT कट. तो U भी हम पुट कर सकते हैं और A भी पुट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. फिर नेक्स्ट इस पे आ गए. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप I पुट कर देंगे, वॉवल I, ZIP जिप, यहाँ पे आप लिख देंगे जिप और यहाँ पे क्या लिख देंगे NIB निब. देन लास्टली here you can put the vowel U. Then PUT put RUN run. PUT put RUN run. So that's complete your G exercise.
Okay, this chapter is over. This was a very small and easy chapter. Okay, beta. Now we move on to the next chapter. What is the next chapter? Next chapter is alphabetical order. You have already learnt it about alphabetical order. We will revise it once again. What is an alphabetical order? This is chapter number 2. The order in which A, B, C, D, E, F are arranged is called the alphabetical order. There are 26 letters in the English alphabet. A, E, I, O, U are vowels. Okay. The remaining letters are consonants. This all of you know that there are 26 letters in English alphabet. A B C D ऐसे कितने टोटल होते हैं 26 लेटर और उनमें कितने वॉवल्स होते हैं A E I O U. These 5 are vowels and rest are consonants. The remaining letter in a dictionary words are arranged in an alphabetical order so that we can easily find their meanings. In a telephone directory also the names of the people are given in alphabetical order. जब आप कोई डिक्शनरी देखे होगा आपने, डिक्शनरी मोटी सी जो होती है उसमें अगर किसी का आपको वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता है तो जैसे डिक्शनरी आपकी होती है तो उसमें स्टार्टिंग में जितने भी ए वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो बी वर्ड आएगा, फिर सी वर्ड आएगा, ऐसे लास्ट में जाकर के फिर जेड वर्ड से दिए रहते हैं। फिर ए में भी क्या होता है कि जैसे किसी का नाम कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद उसमें ए बी आ रहा है या ए सी आ रहा है तो वो वर्ड स्टार्टिंग में रहेंगे, और जो ए के बाद डी आ रहा है या ई आ रहा है तो वो वर्ड्स नीचे आ जाएंगे। जैसे आपके स्कूल जब क्लास में मैम जैसे रोल नंबर लिखती हैं तो जो जिस बच्चे का नाम ए से स्टार्ट होगा वो शुरू के रोल नंबर रहेगा उसका, जिसका बी से स्टार्ट होगा वो उसके बाद, सी वाला उसके बाद, उसी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में आपने देखा होगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट दी जाती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है उसका शुरू में आता है, जिसका बी से उसका बाद में, सी का और बाद में, इस तरीके से इसी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। हाँ, अब इसमें हम ये एक एक्सरसाइज है, ये जब हम करेंगे तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज ए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये टोटल 30 वर्ड्स दे रखे हैं। 30 वर्ड्स में 5 जो वर्ड्स हैं वो आपके सी से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 जी से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 एच से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 एल से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 एम से और 5 पी से। तो हमको इनको अब देखिए, ये भी देखिए हमने ये जो सीरीज यहाँ पे बनाई गई है ये किस में बनाई गई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो सी सबसे पहले आ रहा है, ए बी सी, फिर डी ई एफ जी, देन जी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देन आई जे के एल, देन एम, देन एन ओ पी। तो इसको भी हमने एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया है। अब जब सी आ गया तो हम सी के जितने भी वर्ड्स होंगे उनको अरेंज करेंगे। उनको कैसे अरेंज करेंगे, जैसे सी में क्या आ रहा है, सी में यहाँ पे हम देखेंगे तो सी के कितने वर्ड्स हैं, 5 है। एक देखो ये चाइल्ड हो गया, सी से चाइल्ड, एक यहाँ पे कैबेज हो गया, फिर चाइल्ड कैबेज, फिर यहाँ पे एक कॉक, सी ओ सी के कॉक, फिर यहाँ पे कैरेट, कैरेट हो गया, और कौन सा वर्ड हुआ सी से, 4 वर्ड्स हो गए, कैरेट, एक हो गया यहाँ पे क्लास। तो 5 वर्ड्स हो गए सी से। कौन कौन से वर्ड हो गए, एक हो गया क्लास, सेकंड वर्ड हो गया आपका चाइल्ड, थर्ड वर्ड हो गया आपका कॉक, फोर्थ वर्ड हो गया आपका कैबेज, और फिफ्थ वर्ड हो गया आपका कैरेट। तो सी से हमारे ये 5 वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो हमको सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे जो सेकंड वर्ड है, सेकंड जो लेटर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो किसका ऊपर आ रहा है किसका नीचे आ रहा है। तो इसमें ये एल से स्टार्ट हो रहा है क्लास में, चाइल्ड में एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉक में ओ आ रहा है, कैबेज में ए आ रहा है और कैरेट में भी ए आ रहा है। तो यानी कि ये 2 वर्ड्स
सी के बाद ए आ रहा है, तो ये दोनों वर्ड्स हम ऊपर रखेंगे। अब इन दोनों में कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट और सेकंड ये होगा, क्योंकि इनमें सी के बाद ए आ रहा है, बाकी में किसी में ओ है, एच एल है, तो ये दो वर्ड्स स्टार्टिंग में आपके आ जाएंगे। इन दोनों वर्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, तो ए, इसमें सी के बाद ए आया, इसमें भी सी के बाद ए आया। उसके बाद हम लोग थर्ड वर्ड देखेंगे। थर्ड वर्ड इसमें क्या है, इसमें है बी, और इसमें कैरेट में क्या है, आर। अब बी जो है वो आर से पहले आता है, तो हमारा कैबेज नंबर 1 पे आ जाएगा। तो कैबेज हम सबसे ऊपर लिख देंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या लिख दिया हमने, कैबेज। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कैबेज को हमने इरेज कर दिया, कैबेज क्योंकि हमारा ऑलरेडी हो गया है। अब 4 वर्ड्स बचे, कौन कौन से, क्लास, चाइल्ड, कॉक एंड कैरेट। अब सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, अब सेकंड नंबर पे कैरेट आ जाएगा, क्योंकि ये सी ए है, बाकी ओ है, एच है, एल है, तो कैरेट आपका सेकंड नंबर पे हमने लिख दिया। अब इसको भी हम इरेज कर देंगे, कैरेट को भी। अब 3 वर्ड्स बचे, क्लास, चाइल्ड एंड कॉक। इसमें इसमें आपको देखना है एल पहले आता है कि एच पहले आता है कि ओ पहले आता है। यू हैव टू फाइंड आउट विच लेटर कम्स बिफोर द अदर वन। सो ए बी, आप जब ए बी सी डी पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच जो है वो सबसे पहले आता है, जी एच आई जे के, फिर एल आया, एल एम एन ओ, फिर ओ आया। तो एच का, तो यानी कि चाइल्ड जो है वो इन तीनों में सबसे पहले आ जाएगा। तो थर्ड नंबर पे हमारा हम ये चाइल्ड लिख देंगे। चाइल्ड लिखने के बाद हमने चाइल्ड को भी यहाँ से इरेज कर दिया। अब हमारे पास कितने वर्ड्स बचे, केवल 2 वर्ड्स रह गए। एक है क्लास, सी एल ए डबल एस क्लास, एक है सी ओ सी के कॉक। अब हमको देखना है एल पहले आएगा कि ओ पहले आएगा। तो आप जब एबीसीडी, यू विल रीड, जस्ट रीड एबीसीडी एंड वी विल फाइंड आउट। सो एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल पहले आया, एल एम एन ओ, ओ बाद में आया। तो आपका 4th नंबर पे क्लास आ जाएगा और 5th नंबर पे सी ओ सी के कॉक आ जाएगा। तो इस तरीके क्लास हमने लिख दिया, फिर कॉक आ गया। तो इस तरीके से हमने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज कर दिया। तो सी, क्योंकि अब देखिए सी वाला हमने सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि सी जो है वो जी एच एल एम पी से पहले आ रहा था। तो सबसे पहले हमने सी के जितने भी वर्ड थे सबको चूज कर लिया, उसमें देखा कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, उनको फिर हमने अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5 के। अब सी के बाद कौन सा वर्ड है, जी। सी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है जी। अब जी में कौन कौन से वर्ड हमको दे रखे हैं, जी में हमको उन्होंने फिर 5 वर्ड दे रखे हैं। एक है गूज, फिर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास, थर्ड वर्ड इज गेट, फोर्थ वन इज गुआवा, एंड द फिफ्थ वर्ड इज ग्लास। इसमें अपने अपने बुक में आप ऐसे ही ये वर्ड देख लेंगे, जी से कौन कौन से वर्ड आ रहा है, गुआवा आ रहा है, फिर ग्लास आ रहा है ना। तो ऐसे करके गूज आ रहा है, ऐसे करके 5 वर्ड जी से आ रहे हैं। अब इनको आपको अरेंज करना है। पहले सी के हमने अरेंज कर दिया, अब सी के बाद जी आया, अब जी को अरेंज करना है। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा वर्ड जी के बाद ए किसमें आ रहा है, तो जी के बाद ए आ रहा है किसी में, इसमें आ रहा है, और किसी में ए आ रहा है, और किसी में ए नहीं आ रहा। तो हमारा गेट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि जी के बाद ए आया हुआ है। तो उसको हमने गेट को फर्स्ट नंबर पे लिख दिया। गेट को फर्स्ट नंबर पे लिखने के बाद हमने गेट को क्या किया, यहाँ से इरेज कर दिया। अब 4 वर्ड्स बचे। अब देखिए कि ओ पहले आएगा है, कि आर पहले आएगा, कि यू पहले आएगा, कि एल पहले आएगा। हाउ यू विल फाइंड आउट, बाय रीडिंग द alphabets ABCD, okay? Then ABCDEFGHIJKL, एल पहले आया ना, LMNOPQR, तो एल जो है वो पहले आया। तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, एल, क्योंकि एल यू आर, इस आर से, इस यू से और इस ओ से एल जो है वो पहले आ रहा है। बिफोर एल इज कमिंग बिफोर ऑल ऑफ दिस यू आर एंड ओ। सो ग्लास आपका सेकंड वर्ड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ग्लास लिख दिया, ठीक है। ग्लास लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ग्लास को भी इरेज कर देंगे। अब आपके पास कौन से वर्ड्स बचते, 3 वर्ड्स रह गए हैं, गूज, ग्रास एंड गुआवा, ओके। देन अगेन रीड ABCD, ABCDEFGHIJKLMNO, पहले O आया, LMNO, फिर PQR, फिर U लास्ट में आएगा काफी। तो फिर थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा गूज। थर्ड नंबर पे आपने गूज लिखा और गूज को भी यहाँ से इरेज कर दिया। अब 2 वर्ड बचे, ग्रास एंड गुआवा। अगेन यू विल फाइंड आउट विच वर्ड विल कम अर्ली, then you will read ABCD once again,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, यानी कि ग्रास पहले आएगा, देन लास्ट में क्या आएगा आपका गुआवा। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। इसमें हम थर्ड वाला और करवा देते हैं, एच वाला। तो आप देखिए पहले सी को हमने ले लिया क्योंकि सी जी से पहले आ रहा था, फिर जी आया, अब जी के बाद कौन सा वर्ड आता है, एच। तो एच को अब हम लेंगे। एच के कौन कौन से वर्ड हैं, एच से है हॉर्स, एक वर्ड है हाउस, एक है हेयर, एक है हेन, और एक वर्ड है फिर से हेयर। एक हेयर है कौन सा, खरगोश, और एक हेयर है बाल। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स आपके हो गए। अब फर्स्ट वर्ड सबके कौन से हैं, एच। तो हमको ये अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर किसका पहले आ रहा है। ओके, तो इसमें सेकेंड लेटर क्या है, हॉर्स में ओ है, हाउस में भी ओ है, हेयर में ए है, हेन में ई है, फिर हेयर में, खरगोश वाले हेयर में ए है। तो हेयर और हेयर में इसमें आपको फाइंड करना है कि इसमें कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, क्योंकि दोनों में सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर भी सेम है एंड सेकंड लेटर इज आल्सो सेम। तो दोनों में ए हो गया। देन यू विल गो ऑन टू द थर्ड लेटर। व्हाट इज द थर्ड लेटर, हियर द लेटर इज आई एंड हियर द लेटर इज आर। तो सो यू विल रीड ABCD, JKLMNOPQR, यानी कि आई जो है वो पहले आ रहा है आर से, आई इज कमिंग बिफोर आर। Okay, beta. So here HAIR here will be your first word in the alphabetical order. It will come at the number 1 place in H category. Okay, so you will write here. Here आपने फर्स्ट नंबर पे लिख के इसको आपने इरेज कर दिया। अब सेकंड नंबर पे आपको मालूम ही है HARE हेयर होगा, क्योंकि इसमें ए है, बाकी सब में उसके बाद आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे आपका HARE हेयर हो गया। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, अब आप देखिए ओ पहले आ रहा है, ओ या फिर ई। तो इसे हमने जब ABCD पढ़ा तो ABCDE, हैन का जो ई है, ये जो ई है वो ओ से पहले आ रहा है, तो यानी कि थर्ड नंबर पे आपका हैन हो जाएगा। हैन लिखने के बाद आपने यू इरेज हैन ऑल्सो। अब आपके पास 2 वर्ड्स बचे, एक बचा हॉर्स, HORSE हॉर्स, सेकंड क्या बचा, हाउस, HOUSE। अब इन दोनों में देखिए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो दोनों में एच, फर्स्ट नंबर पे एच है, सेकंड नंबर पे ओ है, थर्ड नंबर का वर्ड अब चेक कीजिए, इसका है आर, इसका है यू। अब देखिए आर पहले आता है कि यू पहले आता है, जब जो अल्फाबेट्स को हम जब रीड करते हैं तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, तो यानी कि आर पहले आता है। तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हॉर्स जो है वो हाउस से पहले आ जाएगा, क्योंकि आर जो है वो यू से पहले आ रहा है। तो फोर्थ नंबर पे हम कर लिख देंगे हॉर्स, और फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा आपका हाउस। इस तरीके से आपको पूरा अरेंज करना, हमने कर दिया है, लेकिन आप ये लो, आप ये बिना चार्ट देखे एक बार अपने से भी अरेंज कीजिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। तो ये तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपके सब समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, विच इज द बी एक्सरसाइज। व्हाट इज द बी एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, नेम दीज 5 थिंग्स दैट यू कैरी टू स्कूल। इसमें आपको 5 पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये आप स्कूल में कैरी करते हैं, तो इसको आपको अरेंज करना है, सॉरी अरेंज नहीं करना है, इनके पिक्चर के बस इनके आपको यहाँ पे नेम लिख देना है। तो जैसे ये पेंसिल हो गया, ये बॉटल हो गया, फिर ये टिफिन बॉक्स हो गया आपका, फिर ये बैग हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका कलर बॉक्स हो गया। तो ये 5 आपने यहाँ पे लिख दी है। अब आपको क्या करना है, नाउ राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर कैसे कैसे करेंगे आप पहले देखिए कौन सा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से इसमें कोई भी नहीं स्टार्ट हो रहा। फिर देखिए बी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, बी से ये बॉटल स्टार्ट हो रही है और ये बैग स्टार्ट हो रहा है बी से। तो अब बॉटल बैग, तो बॉटल में बी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, बैग में क्या आ रहा है, जो बॉटल है, बॉटल की स्पेलिंग हो गई BOTTLE बॉटल, और ये हो गया BAG बैग।
जो सेकंड लेटर क्या है, दोनों में फर्स्ट लेटर बी है, तो सेकंड लेटर आप मिलाएंगे। सेकंड लेटर क्या है, इसमें है ओ और इसमें है ए। ए जो है इट कम बिफोर ओ। सो आपका जब आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बैग है वो नंबर 1 पे चला जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा बॉटल। इसी तरीके से आप यहाँ पे इनको अरेंज कर दीजिएगा। बहुत इजी है बेटा। फिर आपकी सी एक्सरसाइज क्या है, सी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें क्या करना है आपको, राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कुछ वर्ड दिए हैं उनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन कौन से वर्ड दिए हैं, मिल्क, डक, बुल, पार्क, टोमेटो, किंग, बॉय, येलो, टॉल, मैंगो। ये आपको टोटल 10 वर्ड्स दिए हैं। इन 10 वर्ड्स को आपको क्या करना है, इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो कैसे आप करेंगे, पहले देखिए कौन सा वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसमें हम देखें तो ए से कोई स्टार्ट हो रहा है, ए से आपका कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा। बी से फिर देखिए तो बी से कोई स्टार्ट हो रहा है, तो मिल्क, डक, बुल। एक तो बुल स्टार्ट हो रहा है, एक बॉय स्टार्ट हो रहा है। एक वर्ड क्या है बुल, वो भी बी से स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड वर्ड क्या है बॉय, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्पॉट के लिए ये बुल और बॉय हो गए हैं। तो अब इसमें फर्स्ट स्पॉट पे कौन जाएगा, तो अब इसमें देखिए सेकंड लेटर इसमें है ओ और इसमें सेकंड लेटर है यू। अब आप ए बी सी डी फिर से रीड करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे ओ आ रहा है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू यहाँ पे यू, ओ के बाद में यू आता है। तो जो बॉय है वो आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा बी यू डबल एल बुल। ओके, ऐसे ही आप इसे करके ये वाली एक्सरसाइज अपने से कीजिएगा वर्कबुक में। बहुत इजी है, आप आराम से कर लेंगे। तो बेटा इससे करने के बाद आपका 1 और 2 चैप्टर वर्कबुक में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको आप कर लीजिएगा। फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय एवरीवन।